علیکم ناظرین، پروگرام بیٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان جاوید۔ جیسا کہ کھیلوں سے متعلق جو ہے ہم اکثر پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام ہے ہمارا ایک ایسے کھیل پہ جو سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے لیکن اسے اہمیت جو ہے وہ سب سے کم دی جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سنوکر کی، جو کرونا لاک ڈاؤن میں تقریباً 4 ماہ سے زائد وقت عرصے تک جو ہے وہ بند رہا، جس وجہ سے تقریباً لاکھوں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے، کھلاڑی کھیل سے دور رہے، کلب مالکان کو جو ہے وہ بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسوسی ایشن جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے جس کا نام ہے سنوکرز اکیڈمیز کلبز ایسوسی ایشن، جس کا مقصد جو ہے وہ اس کھیل کو فروغ دینا اور مالکان کو تحفظ فراہم کرنا، تاکہ آنے والے وقتوں میں مزید اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان کی آواز اٹھانے والا، ان کی آواز بننے والا کوئی ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ اس تنظیم کے چیئرمین ہیں عظیم جاوید چینا صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ وائس چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن کے میاں ناصر صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، یہ جو تنظیم ہے اس کو بنانے کا مقصد، جیسے میں پہلے بیان بھی کر رہا ہوں کہ جو کرونا کے دوران صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیا وہی ہے کہ کیا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک ناموں سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ اس کاروبار کو، اس کام کو کر تو رہے تھے اور اس میں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں اس روزگار سے، لیکن اس کام میں ہمیں وہ عزت، وہ رسپیکٹ نہیں ملی جو پچھلے 30-35 سالوں سے ہم اس کام میں ہیں، لیکن وہ عزت نہ مل سکی۔ اور ہم لوگ اس کو ترس رہے تھے کہ کوئی ایسا لوگ آئیں کہ جو اس کام کو آگے لے کے جائیں، جو اس کام کو عزت دلانے والے بن جائیں، جو اس روزگار کو ایسا بنائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ صرف کھیل نہیں ہے، ایک بڑا کاروبار بھی ہے۔ تو یہ سب دوستوں نے مل کے بہت کوشش کی اور بہت محنت سے یہ سب لوگ جمع ہوئے، اور ان میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ اس بات کہ آپ ہماری آواز کو پورے پاکستان میں، پوری دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس کام کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے تاکہ یہ کھیل کا کھیل ہو، اور یہاں سے جو لوگ کھیل کے ماہر ہوں گے، ماسٹر بنیں گے، وہ پروفیشنل کھیلیں گے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کے اوپر آتے ہیں اور ان کو چھوٹی ایسے سورس ہی نہیں ملتے کہ وہ آگے آ سکیں، اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے 13 سال 14 سال 15 سال کے لڑکے وہ سٹار بن گئے ہیں، کیونکہ ان کو سورس مل رہے ہیں جو آج تک سورس ملے نہیں تھے۔ اور ہم یہ کوشش کریں کہ نیا ٹیلنٹ لے کے آئیں، اس کام کو عزت دلائیں، اس کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کام کے لیے ہم وہ کام کریں تاکہ یہ کام اور پھلے پھولے، کام آگے بڑھے۔ میاں ناصر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب، جو صورتحال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی تنظیم کے حوالے سے نا آپ اس چیز کو مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کا بتائیں کہ یہ جو تنظیم ہے سنوکر کی، اس سے پہلے بھی ہے موجود ہے، وہ کھلاڑیوں کے حوالے سے کام کرتی ہے، آپ کا ان سے کتنا ڈفرینٹ کام ہوگا؟ جی، وہ پلیئرز کو اور ایونٹ کریٹر ہیں تنظیم۔ ہماری تنظیم جو سی ہیں وہ اکیڈمیز کو پروموشن کرے گی، اور اکیڈمی سے پلیئرز جو سے ہیں وہ پروموٹ کر کے نیشنل اور انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے آگے پرووائڈ کریں گی۔ اور جیسے کہ ہمارے پلیئرز آلریڈی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز کافی جیت چکے ہیں۔ کرکٹ کے بعد واحد یہ اسپورٹس ہے جو اس ٹائم سب سے زیادہ ٹائٹل جیت چکے ہیں، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہ اسپورٹس مین رہ چکے ہیں، وہ اس اسپورٹس میں توجہ دیں، سنوکر میں توجہ دیں، اور اس کی پروموشن کے لیے اور پلیئرز کی پروموشن کے لیے گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور اس پہ نظر ثانی کریں۔
अच्छा अजीम साहब, आप बताइएगा बतौर चेयरमैन जो हैं, क्या आपके गोल्स हैं जिनको सेट करना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इमेज जो है वो बड़ा इसका एक गलत समझा जाता है, लोग घरों में भी इवन के हालांकि टाइटल भी जितवाए हैं, मोहम्मद आसिफ जैसे चैंपियंस दिए हैं, इस तमाम सूरत हाल में उसके बावजूद एक इमेज जो स्नूकर का है वो क्यों बेहतर नहीं हो रहा? तो उस सूरत हाल में आपकी तंजीम जो है वो कौन से ऐसे स्टेप लेगी कि ये इमेज जो है इसको बेहतर बनाया जा सके, लड़के जो खेलते हैं उनके अंदर भी, उनके जहनों में भी ये बात डाली जा सके ये एक खेल है, ना कि जो आम तौर पर तासर दिया जाता है कि यहाँ पर जुआ होता है, यहाँ पर जो है वो ये खेल अच्छा नहीं है, उस तासर को किस तरह से ख़त्म करेंगे? हमारी तंजीम का मकसद ही यही है कि ये जो बैड इमेज है इसको हम ख़त्म करें। ये कोई भी बंदा करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पर इन्वेस्ट करके जुआ करवाएगा? ये तो कुछ लोगों ने, कुछ हमारे अंदर काली बेरे हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं की कि लोगों को बताएं कि भाई इतने पैसे लगा के हम जुआ करवाएंगे। कौन सा कारोबार ऐसा है, कौन से लोग ये हम इनसे जुआ करवाएंगे? हम इस हालत में कि छोटे छोटे बच्चों से जुआ करवाएंगे? कुछ लोग अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ये नहीं है कि सारे लोग बुरे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे 20 टेबलें हैं माशाल्लाह, 20 टेबलों पे हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम जुआ करवाएंगे? ये तो कुछ लोगों ने इनको बदनाम किया हुआ है, कुछ लोगों ने कोशिश ही नहीं की जिनके इख्तियार में ये मामले थे। हम लोग ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये जो बैड एक्टिविटी हैं वो तो खत्म हो चुकी हैं, और अगर कभी होंगी हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और उनको हाईलाइट करेंगे। और इंतजामिया के साथ हम मिलकर ये काम कर रहे हैं कि इंतजामिया को बताएंगे भाई ये लोग सही नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो अच्छे लोग होंगे हम उनके साथ चलेंगे और उनको लेके आगे चलेंगे। और ये स्पोर्ट्स भी है और बिजनेस भी है। स्पोर्ट्स में से जो बच्चे कामयाब होके आगे आते हैं वही हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, और उसी को लेके हमने आगे चलना है, क्योंकि वही हमारी असल प्रॉपर्टी है और वही हमारा फख्र है। और उन्होंने ही पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करनी है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने इस स्नूकर में जितने स्टार दिए हैं वो किसी और गेम में है ही नहीं। बिल्कुल जी। हर साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हमारे लड़के एजाज लेके आ रहे हैं। 3 वर्ल्ड टाइटल हैं, बेशुमार रनर अप हैं, और बच्चों ने कितने टाइटल ले लिए हैं। अब ये सारे टाइटल लड़का लेके आएगा, एक बच्चा लेके आएगा, लेकिन नाम पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है। बिल्कुल जी, हम पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे, और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में जाए, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे खेलों के मैदान जो हैं वो आबाद हों। हम नहीं चाहते कि हम अस्पतालों में जाएं, हम अपने बच्चों को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को मजबूत करेंगे, वो मजबूत पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद ही जो है यही है कि नौजवान जो है वो मुस्बत सरगर्मियों में जो है इन्वॉल्व रहे, ना कि मनफी सरगर्मियों की तरफ जाए। मियां नासिर की तरफ एक दफ़ा फिर बढ़ेंगे। मियां साहब, सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है वो मुझे लगता है कि स्नूकर क्लब मालकान को सबसे बड़ा मसला जो है वो जिस इलाके में होता है वहाँ के लोगों की तरफ से तो उन्हें बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन पुलिस की जानब से भी उन्हें खासा तंग किया जाता है। तंजीम बन चुकी है, इस तंजीम से अब समझते हैं कि ये जो मसाइल है इस तरह के, इनसे भी आपको निकलने में मदद मिलेगी? इंशाल्लाह जी ज़रूर निकलने में मदद मिलेगी। उसी हवाले से हम मेंबर साजी कर रहे हैं। हमारी तंजीम अकेडमीज़ को मेंबर्स बनाएगी और पुलिस के ताउन के साथ हम इंशाल्लाह इसमें से जो मनफी एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करेंगे और उनको तोहफ़ा दिलाएंगे एकेडमीज़ को। और उसमें से मैं अपील करूंगा महकमा पुलिस से और गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि पिछले तकरीबन 4 माह से ज़ायद हम लॉकडाउन में रहे और हुकूमत का भरपूर साथ दिया, और उसकी वजह से हमारे पे अकेडमीज़ पे जो कर्ज का बोझ आ गया उसको उतारने के लिए हमें टाइमिंग दी जाए और पुलिस को पाबंद किया जाए कि अगर हमारी जो अकेडमीज रजिस्टर्ड है उनको फुल टाइम
ओपन करके कर्ज का बोझ उतारने की मदद मिले। पाकिस्तान का नाम जैसे मोहम्मद आसफ ने 2 दफ़ा वर्ल्ड टाइटल जीता है, मैं बेसिकली पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का। आज ये मेरे इंतहाई मोहतरम ये जवेद चीना साहब हैं, मियां नासिर साहब हैं, मैं इनकी दावत पे यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का प्रेसिडेंट भी हूँ। बदकिस्मती से इन लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया और ये लोग इंतहाई जो ज़ाती जो फ़वाइद हैं उनको प्रेफर करते हुए इन्होंने किसी किस्म का भी कोई स्नूकर की प्रमोशन के लिए, खिलाड़ियों की प्रमोशन के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। मैं ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब और डीजी स्पोर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फिलफोर इन सारी जो नेगेटिव एक्टिविटी हैं इनको ख़त्म किया जाए और जो आज ये जो इतने अच्छे माहौल में ये जो हमारी एसोसिएशन यहाँ पे बनी है ये भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि यहीं से प्लेयर निकलने हैं। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा और कौम इनको देखना चाहती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, कौम देखना चाहती है। अजीम जी साहब की तरफ से दोबारा मैं एक मौका लेना चाहूँगा। ये जो तंजीम जो है आपने बनाई है, इसका तरीकाकार क्या होगा? क्लब्स को किस तरह से रजिस्टर्ड किया जाएगा और तंजीम को पूरे पाकिस्तान में किस तरह लेके जाएंगे? लाहौर में तो इसकी बड़ी शानदार आज आपने यहाँ पे तकरीर की है। ये माशाल्लाह हम लाहौर में असल में लोग एक्टिव नहीं हैं। ये आज छोटी सी कोशिश हमने इनको एक्टिव करने की है। ये बहुत कम लोग हैं। हमारी स्नूकर फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है कोई शक नहीं। और इन लोगों को मुत्तहिद करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि इन एकेडमीज को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। जैसे हमारा बैड एक्टिविटी का हमारे को लोगो लग चुका है, उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे, बल्कि ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसकी राइट वे हमें मिलेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए जी, इसमें मैं एक छोटी सी मादर के साथ एक पॉइंट ऐड कर दूं। ऐसे ही क्रिकेट है, उसमें भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। जो रजिस्टर्ड हैं, जो हमारी एसोसिएशन बनी है, जिसके सरबराह ये लोग खड़े हैं। आप की बात से मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ स्नूकर नहीं, बाकी खेलों के हवाले से भी वालिदैन का गलत असर है ज़हनों पे, लेकिन वहाँ पर जो बॉडीज बैठी हुई हैं उन्होंने उसको मुस्बत करने के लिए रोल किरदार अदा किया है। आपने थोड़ी ताख़ीर कर दी है। मैं आप कह रहा हूँ कि आपकी तंजीम अगर अब बन चुकी है, आप ये किस तरह से आगे चलेगी, किस तरह से आप इंशाल्लाह ये अजीम जो है चीना साहब इसके सरबराह हैं और हम इनके इंशाल्लाह इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, हम इनके इंशाल्लाह स्पाई बन के चलेंगे, क्योंकि ही इज द मोस्ट सीनियर टू मी। मैं आपको ये बताता हूँ, हम ये कोशिश करेंगे कि ये अदारा बनेगा, जो अदारा हमने जो बनाया है, जो इसका मेंबर होगा उसको बिल्कुल उस पोजीशन पे हम रखेंगे कि इसमें कोई बैड एक्टिविटी ना हो, इसका चेक एंड बैलेंस होगा। अगर कोई भी बंदा किसी गलत काम में इन्वॉल्व होगा, हम उसको अपनी रुकनीत से फारिग करेंगे। ये जरूरत थी इस वक्त जो ये तंजीम यहाँ पर बनाई गई है, उस तंजीम का मकसद भी यही है कि जो स्नूकर है एक बड़ा बैड इमेज जो है वो जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली ये स्पोर्ट्स है, लड़के बड़े शौक से खेलते हैं और पाकिस्तान में टैलेंट बेशुमार है। आपने अक्सर टिकटॉक पे देखा होगा कि ऐसी ऐसी शानदार शॉट्स लगाते लड़के, वहाँ पे हमें उनकी वीडियोस देखने को मिलती है और सिर्फ क्या है कि उनको प्रमोट नहीं किया जाता, नेगेटिव इमेज जो है इसका एक बिल्ड है। तो उम्मीद करते हैं ये जो तंजीम है अब ये उस इमेज को बेहतर कर बनाने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दीगर ओहदेदारान से भी मिलाएंगे, मालकान से भी मिलाएंगे और कुछ प्लेयर्स के साथ भी आपको यहाँ पे मिलवाएंगे, उनके तासुरात भी आप तक पहुंचाएंगे। टेक अ ब्रेक। पाकिस्तान के 15,000 डॉक्टर्स का मुफ्त एंटीबॉडी टेस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बीट स्पेशल और आज का प्रोग्राम कर रहे हैं स्नूकर के ऊपर कि स्नूकर को जो एक इज्जत है वो क्यों नहीं मिल रही और उसके लिए जो अब तंजीम बनी है और उस तंजीम का क्या मकसद है और उस तंजीम वो जो स्नूकर का इमेज है उसको किस तरह से बेहतर बनाएगी। आप हमारे साथ जो हैं वो दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं। सदर हैं फैसल अकरम, हम इनसे बात करते हैं। पहले फैसल साहब बताइएगा, तंजीम जो है वो बन चुकी है अब आपकी, ये तंजीम आप समझते हैं कि थोड़ा ताख़ीर से बनाई है? क्योंकि दीगर खेलों की अगर बात की जाए उन्हें जो मुकाम जो इज्जत मिली है
अलग स्नोकर में वर्ल्ड टाइटल दिए लेकिन उसके बावजूद वो इज्जत इसे नहीं मिल सकी। क्या वो समझते हैं कि तंजीम का ना होना मसला था या कोई और था? पहले तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉपर ये इंडोर गेम है, लेकिन आज तक इसको इंडोर गेम समझा नहीं गया। 30 साल से एक ही गलती हो जा रही है कि ये स्नूकर को एक उस तरह से इज्जत नहीं मिली। इसको एक बैड यानी कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, इसको इवन के स्पोर्ट्स में ही कंसीडर नहीं किया जाता। कि हालांकि स्पोर्ट्स है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल यानी हमारे पास है, स्नूकर लेके आ रही है और आगे लेके यानी मजीद हम उसमें यानी कर रहे हैं। हर साल अगर आप देखा जाए काउंटिंग किया जाए तो स्नूकर सबसे ज़्यादा टाइटल लेके आ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें प्रॉपरली यानी नेगेटिव एक्टिविटी में कंसीडर किया जाता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारी यह तंजीम बनाने का मकसद ये है कि हम प्रॉपरली उसको हम इसका अपना मुतारफ़ करवाएं कि हमारी ये जो स्नूकर क्लब्स और अकेडमीज़ हैं ये उस तरह की नहीं जिस तरह से हमें यानी समझा जाता है। हमारा एक बड़ा अच्छा माहौल आपके सामने ही देखें, हर बंदा आगे इस तरह खेल रहा है और एक अच्छा माहौल हमने दिया हुआ है। तो इसमें हमारा ना कि हम जुआ वगैरह करवाते हैं, ना कोई बैड एक्टिविटी वगैरह होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप देखिए फ्रेंडली माहौल है, आके हर बंदा अपना गेम एंजॉय करता है, जैसे इंडोर गेम एक प्रॉपरली होती है। लेकिन हमें आज तक उस तरह से इज्जत नहीं मिल सकी। हम ये तंजीम बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमें प्रॉपरली वो एक इज्जत मिले, हमारा ये जो हम फ़ख्र से कह सकें कि हम स्नूकर का कारोबार करते हैं। बिल्कुल जी, स्नूकर जो है वो भी एक कारोबार है और उसको कारोबार पाकिस्तान में समझा क्यों नहीं जाता, उसके लिए अब ये तंजीम है और ये तंजीम आगे चल के काम करेगी। वाइस प्रेसिडेंट हैं इमरान शाही साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान शाही साहब की जो मैं खुद जानता हूँ, जहाँ तक उन्होंने स्नोकर के लिए जो है बड़े अरसे से काम करते नजर आ रहे हैं और उनकी हमेशा कोशिश है कि वो स्नोकर को किसी मुकाम तक लेके जाएं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ अक्सर मुलाकात करते नजर आते हैं, सूबाई वजीर के साथ जो है उनकी कोशिश होती है मुलाकात करते हैं और इन तमाम सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ उनकी एक कोशिश है वो किसी तरह स्नोकर को उस मुकाम पर ले जाएं जहाँ पर दीगर खेल हैं। कोरोना के दौरान भी बड़े एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते रहे हैं और अपने क्लब्स को बहाल कराने के लिए काफ़ी मेहनत की है। इमरान साहब, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती नज़र आ रही है कि आप जो दीगर मालकान हैं, दीगर क्लब ऑनर्स हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं, एक एसोसिएशन आपकी सामने आई है। किस तरह से लेके चलेंगे अब इस एसोसिएशन को और क्या आपके आगे टारगेट्स हैं? देखिए जी, वो मिसाल जो है ना वो आज मुकम्मल हो गई कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन दोस्तों की सूरत में हम एक ऐसी तंजीम बनाने में कामयाब हुए हैं जो स्नूकर क्लब मालिकान हैं, स्नूकर के प्लेयर्स हैं, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए। क्योंकि हमारे जो क्लब्स हैं वो लोगों की नज़र में एक ऐसे ही है जैसे कोई नेगेटिव एक्टिविटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम तकरीबन 4 से ज़ायद वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान ला चुके हैं। मोहम्मद आसिफ की सूरत में, बाबर मसीह की सूरत में, फिर हमारा नसीम अख्तर है जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन है, मोहम्मद सजाद, असद, ये डायमंड्स हैं स्नूकर के। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे, सपोर्ट करे तो ऐसे कई नगीने हीरे इन स्नूकर क्लब्स में से निकल के सामने आएंगे। इन स्नूकर अकेडमीज में से बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है ना वो हम लाने में कामयाब होंगे, जो हमने ये तंजीम क्रिएट की है और क्लब मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। और मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, हमारे नौजवान मिनिस्टर हैं राय तैमूर खान भट्टी साहब, तो माशाल्लाह उनका विजन जो है ना बड़ा क्लियर है नौजवानों के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी टीम उनसे मुलाकात करेगी, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे स्नूकर क्लब खुलने के लिए। तो उनको हम अपना अगला लायामल भी देंगे वहाँ पे कि हम करना क्या चाह रहे हैं और आगे इस खेल की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अच्छा इमरान साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप समझते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स, क्योंकि अभी तक मोहम्मद आसिफ की बात कर ली जाए, उनको किसी किस्म की प्राइज मनी जो है वो नहीं दी गई, हमेशा ऐलान कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। आप समझते हैं कि जो आपकी तो सब मालकान और अकेडमी से रिलेटेड एसोसिएशन बनी है, लेकिन जो एसोसिएशन प्लेयर्स के लिए काम कर रही है, टूर्नामेंट्स के लिए काम करती है, क्या उसने अपना रोल सही से प्ले नहीं किया कि स्नूकर का इमेज जो है वो आज तक बेहतर नहीं हो सका? देखिए जी, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ये एक 30 साल से एक सिस्टम चल रहा था वन मैन शो की सूरत में, अब उसको हमने ख़त्म किया है और एक तंजीम की सूरत में लाए हैं। आपने बात की प्लेयर प्रोड्यूस करने की, तो वो इन्हीं क्लब्स में से प्रोड्यूस होते हैं प्लेयर। और जो कम्युनिकेशन गैप था बिटवीन गवर्नमेंट और एसोसिएशंस, अब उसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप उनको मिलेंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं। हमारा एक बंदा वर्ल्ड टाइटल जीत के ले आता है, कोई एसोसिएशन, कोई तंजीम है ही नहीं जो जाके अपने प्लेयर को वहाँ इंट्रोड्यूस करवाए कि सर ये हमारा बच्चा टाइटल जीत के लाया है, आपने इसको रिवार्ड देना है। तो गवर्नमेंट तो इसी सूरत में भाई ओबलाइज करेगी आप लोगों को। अब इस टीम का मकसद ये है, जो कराची में जो एसोसिएशन बैठी हुई है, पंजाब एसोसिएशन है स्नूकर की, जिनकी क्या जो है वो दीगर अहदेदार हैं जो काम कर रहे हैं उसकी,
کہ وہ انہوں نے پلیئرز کو جو ہے وہ ٹورنامنٹ میں تو وہ اپنے شاید اپنے ٹور کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کلبز کے ساتھ تعاون ہے وہ انہوں نے نہیں کیا آج تک. سر وہ آپ کو بتایا ہے کہ 30 سال سے ایک ادارہ جاری ان کی چل رہی ہے اور وہ ون مین شو کھیل رہے ہیں. اب وہ ٹائم ختم ہو گیا. اب یہ ٹیم آپ کو انشاءاللہ پاکستان میں ورکنگ کر کے دکھائے گی. ہم آپ کو پنجاب لیول، نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس انشاءاللہ دیں گے. اور میں آپ کے چینل کی وساطت کے تھرو رائے تیمور خان بھٹی صاحب سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم بہت جلد ان سے ملنا چاہ رہی ہے. کائنڈلی وہ ہمیں کو ٹائم بتائیں، ہم جا کے ملیں گے اور ہمارے جو تفوضات ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور مجھے پتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے جس قدر کام کر رہے ہیں نا، اس کھیل میں 50 لاکھ سے زائد نوجوان شامل ہیں، تو کائنڈلی ان کو چاہیے کہ ان کے لیے 50 لاکھ فگرز کو حوالے سے کافی جانتے ہیں. بعد میں ان کی طرف بھی آتے ہیں. کاشف چودھری سے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں. آپ بتائیے گا جو تنظیم بنی ہے، سمجھتے ہیں کہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل اس کو پہلے بننا چاہیے تھا، لیکن جو پہلے جس طرح عمران بھائی نے بتایا کہ جیسے پہلے ون مین شو چل رہا تھا، وہ اس چیز کو بننے نہیں دے رہے تھے. اب یہ بنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جتنی بیڈ ایکٹیویٹی بھی ہے اس کو بھی کلیئر کریں گے، اس کے لیے بھی کام کریں گے. اور اس کے لیے مزید ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے کہ ہم جو نوجوان ہیں ان کو پروموٹ کریں، آگے جو پلیئرز ہیں ان کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. پلیئرز کو پروموٹ کریں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ساغر مغل صاحب ہیں جی، اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں اس تنظیم کے. کیا لگتا ہے جو تنظیم اب بنی ہے سنوکر کا امیج بہتر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم جو تنظیم بنا رہے ہیں یا بنی ہے ہماری جو تنظیم، انشاءاللہ سنوکر کلب مالکان اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بہترین سے بہترین سہولیات جو ان سے ہیں اس ایسوسیشن کی طرف سے وہ ان کو میسر ہوں، اور بہت اچھے بندے جو ان سے ہیں وہ ہم اس میں سے نکالیں گے اور صاف ستھری کھیل کو صاف ستھرا کھیل جو ہے اسے کریں گے. سہیب نسیم صاحب ہیں، میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. آپ بتائیے گا جو سنوکر کی تنظیم ہے یا آپ کی جو تنظیم اب بن چکی ہے، اس کا آگے جو ہے اس کو منظر عام پہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچنا بہت ضروری ہے. بطور میڈیا کوآرڈینیٹر آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے آپ میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے وہ رکھیں گے تاکہ اگر آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں، کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھی نظر آئے تاکہ اس کھیل کی طرف جو امیج ہے وہ بہتر ہو؟ جی کچھ ہڈن ریالٹیز ہیں کہ بیڈ اسپیکٹ سمجھا جاتا ہے سنوکر کو، لوگ اس سے پرے پرے رہتے ہیں، مگر اس کے بہت پازیٹیو بھی ہیں. ہم نے میری بذات خود ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ان پازیٹیو اسپیکٹس کو سامنے لے کر جانا ہے، سنوکر کی پروموشن کرنی ہے، لوگوں کو ممبرشپس میں لے کر آنا ہے. بہت سارے دیکھیں کلبس کام کر رہے ہیں، جو اوسس کی مثال دوں گا، دے ڈیل ود ممبرز. پی سی کی مثال دوں گا، دے ڈیل ود ممبرز. انشاءاللہ ایسے سی سنوکر ایسوسیشن اور جو اکیڈمیز کے اس تنظیم کو ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اس میں بھی ہم ممبر سازی کریں گے. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کون لوگ آ رہے ہیں کھیلنے، ان کی ریالٹیز کیا ہیں، ان کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں، اور ہم نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. اور بائی دی ایج آف 10 سال کی عمر سے ہم نے کوچنگ سٹارٹ کروانی ہے ٹو پروڈیوس میکسیمم پلیئرز ان پاکستان جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کر سکیں. یہ بینگ اے میڈیا کوآرڈینیٹر یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل جی ذمہ داری ہے. عمران شاہی کی طرف دوبارہ آتے ہیں. عمران بھائی کنفیوژن کر دی آپ کے بندوں نے مجھے تھوڑا سا آپ نے کلیئر کرنا تاکہ ان لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے. کلبس اور اکیڈمیز ان کے مسائل، ان کے تحفظ کی طرف ان کو لے کے چلنا ہے یا پلیئرز ڈیولپمنٹ کی طرف آنا ہے؟ یہ تنظیم جو ہے، کیونکہ ایسے تو پھر وہی بات کہ جو پنجاب اسپورٹس بورڈ بھی ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ پیرالل ایسوسیشنز ہیں، وہاں سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. پلیئرز کا آپ کا جو اصل فوکس ہے وہ پلیئرز ہیں یا مالکان کا جو مسائل ہیں ان کا تحفظ ہے؟ اچھا، ہمارا اصل فوکس ہے بیس، اور بیس ہے سنوکر کلب. ایسے ہی پلیئر کہاں سے پروڈیوس ہوتا؟ سنوکر کلب سے، سنوکر اکیڈمی سے. ہمارے پاس یہاں نیشنل کوچ، انٹرنیشنل کوچ بھی آئے ہیں. آج یہاں خوش نصیبی ہے کہ یہاں اویلیبل ہیں وہ لوگ. آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مشکل معاملہ ہے. اچھا، اب آپ ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہے. یہاں بات کلیئر ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی بیس مضبوط کرنی ہے، اور بیس ہے ہماری سنوکر کلب اور سنوکر اکیڈمی. دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو ہے، ڈسکس تو نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آج کروں گا.
पुलिस को क्या तहफुजात है हमारे स्नूकर क्लब से? यही पहले मेरी आपके चेयरमैन से भी यही मेरा सवाल था, क्या तहफुजात ये है? तंजीम अब पुलिस के मुकाबिल मैं आपके इदारे के थ्रू उनसे पूछ रहा हूँ कि सर आपको अगर कोई तहफुजात है। आज हमने ये टीम जो बनाई है ना सिर्फ इसीलिए बनाई है, और हम इंशाल्लाह पुलिस के हाई ऑफिशियल से भी मिलेंगे, गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल से भी मिलेंगे और उनको क्लैरिफाई करेंगे और उनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर करेंगे और अपनी गेम को जो हमारे स्टार्स हैं ना उनको हम अब फीका नहीं पड़ने देंगे। अब उनकी जो रोशनी है ना वो मांद नहीं पड़ने देंगे, उनको और उठाएंगे इंशाल्लाह। और उठाएंगे। फैसल की उनकी तरफ दोबारा आते हैं। फैसल साहब, जो इमरान भाई ने बात की है, ये जो पुलिस भर्ती है इस मामले में स्नूकर के ऊपर मैं कहूँगा, बाकी चले हमारी पंजाब पुलिस काम कर रही है, लेकिन स्नूकर के हवाले से जो स्नूकर मालकान को तंग किया जाता है वहाँ पे अब आपकी तंजीम का रोल जो है वो बड़ा अहम होगा। तो कोई इस तरह का प्लान बना के जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो? सर बिल्कुल हम इस तरह अपना प्लान कर रहे हैं। आज तक देखें पुलिस को एक हमारे बारे में कोई मेंटालिटी उनकी चेंज नहीं कर सका। उनकी सिर्फ ये मेंटालिटी है कि सिर्फ ये जुआ खाने हैं, इसमें बैड एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। हम उनको दिखाते हैं कि सर आप आएँ, आके हमारे क्लब्स देखें, हमारी अकेडमीज देखें, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक इंडोर का यानी स्पोर्ट्स हम चला रहे हैं, अकेडमीज चला रहे हैं, बल्कि प्रॉपरली इधर हम कोचेज हमने हायर किए हुए हैं जो आगे बच्चों को ट्रेनिंग देती है, उनको ट्रेन करती हैं, जो कल के वही प्लेयर्स जाके इंटरनेशनली यानी अवार्ड वगैरह लेके आते हैं। जी, तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दोबारा जो है यहाँ से ही कंटिन्यू कराएंगे और आपको बताएंगे कि स्नूकर के मालकान जो हैं उनके अब क्या कागजात हैं और वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं अब इस तंजीम से, और खिलाड़ी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो जब यहाँ पे खेलने आते हैं तो उनके जहनों पे क्या तासरात होते हैं। स्पेशल आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं स्नूकर के ऊपर, और स्नूकर में जो मालकान हैं उनको जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है उन्हें 4 माह बंदिश का सामना रहा, इस तमाम सूरत हाल में एक तंजीम जो है वो उभर कर सामने आई है। उस तंजीम के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी है नईम अनवर, उनसे हम बात करते हैं। नईम भाई बताइएगा, जो तंजीम आपके बनकर सामने आई है कैसे लेके चलेंगे इसे, क्या मामलात हैं, क्या समझते हैं कि जो एक इमेज है स्नूकर का और मालकान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो अब बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका, आपकी पूरी मीडिया टीम का, पूरे मीडिया हाउस का, जिन्होंने हमें ये कवरेज दी और स्नूकर का जो मुस्बत चेहरा जो आज आप मीडिया पे आप पूरी दुनिया को आपके तवस्सुल से देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम एफर्ट तो कर रहे हैं। एक हमने प्लेटफॉर्म एक तो हमने बना लिया है और ये तभी मुमकिन है कि जब यूनिटी होगी तमाम स्नूकर क्लब ऑनर्स और पूरी स्नूकर इंडस्ट्री के बीच में, ये तभी हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकता है और उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है, प्लेयर्स का, कोचेस का और स्नूकर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों का कि जो यहाँ से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। हम उनके लिए आगे आए हैं और उनकी आगे बढ़ने, उनको आगे लेके जाने के लिए ही हम मुस्बत तौर पे हम काम करने के लिए कोशा भी हैं और मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बेहतर बनाया जाएगा। सरमद सुल्तान साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के। सरमद भाई, बड़ा अच्छा आप स्पीच भी कर रहे थे, आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। मुझे ये बताइएगा, कोरोना के दिनों में जो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, आपकी तंजीम जो है आप वजूद में आई है, कोरोना के दौरान जो आपको मसाइल थे उनका अनडाउटेडली जी वी सफर्ड अ लॉट। कारोबार बंद थे, इजाज़त नहीं थी कारोबार खोलने की, उसमें जो क्लब मालकान थे उनके ऊपर 4-4, 5-5 माह के किराए चढ़ गए। ये बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिसमें वो किरायों की मद में वो कर्ज़ों के तले दबते चले जा रहे थे। इस सूरत हाल में भी हमने हुकूमत पाकिस्तान की जितनी भी उनके इंस्ट्रक्शन से उसको फॉलो किया, बल्कि अपनी तमाम एसोसिएशन के ज़रिए भी और अपनी अवेयरनेस जो हमने मुख्तलिफ अपने चैनल्स पे फैलाई, वो यही थी कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो भी कर रहे थे और साथ साथ हम साइलेंटली अपनी प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाए थे सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, और हमने बैनर्स लेके भी निकले, रोड्स पे भी निकले, लेकिन हमने कहीं पर भी कानून की जो है कानून शिकनी नहीं की। और लेकिन इसके साथ साथ एक यकीन भी था कि हमारी सुनवाई होगी और बिल आखिर जो है वो हमारे कारोबार अब दोबारा खुले हैं, तो अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता जो है मामला अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। अभी जो तंजीम है ये बन चुकी है, आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो क्या आप समझते हैं कि आप तंजीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि
جو جتنے بھی حکومت میں بیٹھے اراکین ہیں یا کوئی بھی عہدیداران ہیں، اسپورٹس بورڈ کے عہدیداران ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہوئے جو ہے پہلے سے ہی کوئی اس طرح کا لائے عمل جو ہے وہ اپنا لیں تاکہ اس طرح کے مسائل کا الحمدللہ یہ تنظیم جیسے مورز وجود میں آئی ہے اس کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ایک تو اس کی ویل ایجوکیٹڈ اس کی ٹیم ہے جو اس کے ایگزیکٹو ممبرز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اسپورٹس بورڈز اینڈ کلچر فیڈریشن کے ساتھ ہماری کولیشن ہے. اس کے علاوہ آل پاکستان انجمن تاجران نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سی پاسبلٹیز کے ڈورز اوپن ہوئے ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں مورز وجود میں آ چکی ہیں جو سنوکر کی انڈسٹری کے لیے، سنوکر کی بقا کے لیے جو ہے بہت خوشائن ثابت ہوئی ہیں. بالکل جی. سید فیض الحسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہوگی؟ میری ذمہ داری جی بیسکلی یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بتانا چاہوں گا کہ میں چیف کوآرڈینیٹر ہوں سنوکر ایسوسیشن کا اور کوآرڈینیٹر ہوں فیڈریشن کا. تو الحمدللہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ ہماری سنوکر انڈسٹری کو جو کلبز ہیں وہ ریکگنائز نہیں ہوتے تھے. ریکگنائز اس وجہ سے نہیں ہوتے تھے، آج تک اس کے اوپر کسی نے فالو اپ نہیں دیا، اس کو کسی نے اون نہیں کیا. آج الحمدللہ فیڈریشن نے ہر انسٹیٹیوشن کو ہمارے اون کر لیا اور الحمدللہ ہمارے لاہور کے 70 سے 80 ممبرز بنے ہیں. اور ہم نے ایک رجسٹریشن اوپن کی تھی جس کا اناؤنس کیا ہوا تھا، جو کہ آج ہم نے کلوز کر دی کہ اس کے بعد کوئی ممبر نہیں ہوگا. سب سے بڑا جو ایسوسیشن کو بینیفٹ ملا ہم سے فیڈریشن کے حوالے سے کہ آج کے بعد یہ پاکستان میں پنجاب کپ، سرحد کپ، سندھ کپ اور بلکستان کا کپ اور تمام ایونٹ آپ کے اس پلیٹ فارم سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ریکگنائز ہوں گی اکیڈمیز سے لڑکے پروموٹ ہوں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکے پروموٹ ہوتے تھے، اکیڈمیز کا نام نہیں آتا تھا، کوچز کا نام. سر یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پھر پلیئر ڈیولپمنٹ کی طرف آ گئی ہے. پلیئر ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ پنجاب سنوکر ایسوسیشن یا جو کراچی میں بیٹھی ہوئی بلیئرڈ ایسوسیشن ہے، کیونکہ وہ پلیئرز کا ٹورنامنٹ انٹرنیشنلی بھی وہی دیکھ رہے ہیں، باہر بھی ان کا انٹرنیشنل سنوکر فیڈریشنز کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ الحاق ہے. اس تمام صورتحال میں اگر پیرالل ایسوسیشن کی وجہ سے آپ دوبارہ وہ آپ پہ کوئی قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے پھر دیکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسوسیشن اور فیڈریشن میں آج تک لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. ایسوسیشن پرائیویٹ لوگوں کی بنائی جاتی ہے اور فیڈریشن گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے فیڈریشن کے تھرو ان کو اون کیا ہے ایسوسیشن کو اور ان کو رجسٹرڈ کیا ہے. آج کے بعد جتنے بھی کلب ممبران ہوں گے وہ سارے رجسٹرڈ ہوں گے. پولیس کا ایک ایشو آتا تھا کہ جی آپ کے کلبز میں رات کے ٹائم پلیئرز کھیلتے ہیں اور یہ سب سے بڑا ایشو تھا ان کلب اونرز کا. وہ ہوتا یہ تھا کہ اس انسٹیٹیوشن کو کوئی اون نہیں کرتا تھا. ہم نے اس کو اون کیا اور ان کو یہ بات بتائی ہے. میری ایس پی کینٹ سے بھی بات ہوئی ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جس میں یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ رات کے بعد ہمارے کیونکہ 9 ایونٹس ہیں سال کے، اس ایونٹ میں کھیلتے ہیں ہمارے ممبرس کیونکہ کلب کو پروموٹ کرتے پر کلب پروموٹ کرتا ہے لڑکوں کو. تو کلب اکیڈمیز میں جو لڑکے پریکٹس کرتے ہیں ان کا ٹائم کیونکہ اس اب پروفیشن کے بیچ میں لوگ پڑھے لکھے اس بزنس کے بیچ میں آ گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. تو میرا خیال سے میں خود پروفیشنل ایک پلیئر ہوں، گیم کھیلتا ہوں، پنجاب کپ میں نے کھیلا ہوا ہے، تو میں خود لائر بھی ہوں. تو 7 بجے کے بعد مجھے بتائیں کہ میں کس ٹائم پریکٹس کروں گا، تو مجھے کم از کم 5 گھنٹے پریکٹس کے لیے چاہیے. اسی لیے ہم نے تمام اس میں وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے ایک لا بنایا ہے کہ 10 بجے تک واکنگ کسٹمر کھیلے گا اور واکنگ کسٹمر کے بعد رات کے ٹائم سے لے کر صبح تک ہمارا ممبر کھیلیں گے اور ممبر کے لیے پریکٹس ریکوائرڈ ہے. تو اس لیے گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ ان ممبرس کا ڈاٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے اور جو واکنگ کسٹمر آتا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیلز ہم چلیے امید کرتے ہیں کہ اس تمام تنظیم جو بنی ہے اس سے جو ایک مالکان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، پولیس کی جانب سے جو انہیں مشکلات کا سامنا تھا، وہ تمام مشکلات کہیں نہ کہیں اب حل ہوتی نظر آئیں گی اور تنظیم جو ہے وہ پورے پاکستان لیول پہ بھی کام کرے گی. کوچز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. محمد آصف جو ورلڈ چیمپئن ہیں ان کے کوچ ہیں ہمارے ساتھ استاد شاہد صاحب، ان سے ہم جانیں گے. شاہد صاحب آپ بتائیے گا مجھے کہ پاکستان میں سنوکر کا ٹیلنٹ بہت موجود ہے، لیکن جو ایک کھلاڑی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، ایسوسیشنز کی طرف سے، وہ نہیں ملتا. کیا وجہ ہے؟ کیا سنوکر کا امیج جو بہتر نہیں ہو رہا تھا؟ امید کرتے ہیں جو تنظیم اب بنی ہے یہ تنظیم اس امیج کو اب بہتر کرے گی، جو نیگیٹو امیج ہے اس کا بہتر کرے گی. تو اس تمام صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب کتنا فائدہ ہوگا پلیئر کو بھی اور سنوکر کے کھیل کو اس تنظیم؟
अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले ऐसा काम नहीं देखा अभी फ़िलहाल तो भाई अगर कोई फेडरेशन है या एसोसिएशन है या पाकिस्तान कोई एसोसिएशन के मेंबर यानी कि स्नूकर की तरफ इस तरह कोई गहरी तवज्जो नहीं की गई। तो बात है कि अब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन टीम ने मुकम्मल तौर के ऊपर अगर इन्होंने ये काम शुरू किया और ये तमाम मामला जो हैं वो समेटने वाले हैं। जितने भी स्नूकर के अंदर नेगेटिव रोल यूज़ हो चुके हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये टीम बनी है। ठीक हो गया। तो कैसे आपका क्या विजन होगा, आप कितना रोल प्ले करेंगे इससे? अल्हम्दुलिल्लाह हम रोल वो पूरा प्ले करेंगे जो हमें मिलेगा, जो स्नूकर लड़कों को प्रमोट करने के लिए जो इनकी सपोर्ट लेने के बाद हम ये अपना काम करेंगे, क्योंकि ये हमें एकेडमी भी यूज़ करने के लिए देंगे और हम अपने लड़कों को मुकम्मल तौर पर बड़ी आसानी से अपना काम आसानी से अंजाम दे पाएंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पर इंटरनेशनल कोच भी हैं शरीफ साहब, उनसे भी हम बात करते हैं। शरीफ साहब आप बताइएगा कितना फ़ायदा होगा लड़कों का इस तंजीम का, जो और खासकर क्लब मालकान को कितना फ़ायदा होगा? ये जी सबको फ़ायदा होगा, क्लब मालकान को भी होगा और सब स्नूकर प्लेयर को भी होगा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, इससे पहले ऐसा कोई नहीं बना हिसाब जो है ना, जो सिस्टम के किसी स्पोर्ट्समैन को यानी कि कोई फ़ायदा हो, तो इससे तो माशाल्लाह सबके लिए ही फ़ायदा है। जी सबके लिए फ़ायदा है और हम भी यही दुआ करते हैं। की करने लगा हूँ जी जी ज़रूर जी। एज अ फेडरेशन के हवाले से मैं करना चाहूँगा कि शरीफ को हमने कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया दुबई के लिए, तो माशाल्लाह से आइंदा के बाद स्नूकर के जो रिप्रेजेंट करेंगे वो शरीफ करेंगे दुबई से। सर जी ये भी है, इंटरनेशनल भी स्नूकर की नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन जो है होती नज़र आएगी। सरमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद जो है वो जानते हैं। सरमद साहब एक बड़ी अहम जिम्मेदारी जो आपकी टीम पर आयद होगी वो ये है कि क्लब का जो इमेज है कि जो हमारे यहाँ मुआशरे में समझा जाता है, पुलिस की जानिब से तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा प्लान है जो लेके आएंगे कि जो लड़के यहाँ पर खेलने आते हैं, जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो अक्सर लड़कों की जानिब से हमें कहा गया कि यार हमारी वीडियो ना बने, इस तासर को, इस सोच को कैसे ख़त्म करेंगे, उसमें क्या रोल है? जी स्पेशली हमने इमेज बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। वो कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। ऐसे हुआ ये कि पास में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस हुए हैं जहाँ पे जैसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह पहले तासुर ऐसे था। ये 5 साल पहले ऐसा सीन था कि जहाँ पर स्नूकर क्लब्स में नशा वगैरह होता था, कुछ जराइम पेशा लोग पना लेते थे और फिर इस वजह से ही बदनाम हुई कि वहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह होती थी। लेकिन जो ही एकेडमीज जो है वो सामने आना शुरू हुई, मेंबरशिप सिस्टम शुरू हो गया कि सिर्फ मेंबर एंट्री कर सकता है, यानी हर जो है ले मैन अंदर भी नहीं जा सकता, उसे अपनी पहचान करवानी पड़ेगी। और अक्सर लोगों ने तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है अटेंडेंस का भी बंदोबस्त किया कि सिर्फ हमारे जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही अंदर जाएंगे। तो जब मेंबर्स जो हमारी डाटाबेस में हैं उनका सारा डाटा हमारे पास मौजूद होता है, उन्होंने मेंबरशिप फॉर्म फिल किया होता है जिसमें लिखा होता है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अनफेयर है, इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करेंगे, किसी किस्म की गैम्बलिंग। एक बात सिर्फ यहाँ पे क्लियर कर दें कि जो अभी आपकी ये तंजीम है मेंबर साहब जी, आप अभी कह रहे हैं कि खत्म बंद कर दी गई है अभी तक फिलहाल? ये जितने हमारी ये उनकी बात कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन जो किया था, आपने क्वेश्चन किया था कि ये जो इस बारे में जो इमेज के वाले से बात किया, इमेज ऐसे इमेज को ठीक करने के लिए प्रोग्राम का इख्तिताम है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये चीज़ क्लियर कर दें कि क्लब अगर कोई आपसे ये रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से वो आप तक पहुँच सकते हैं, वो मालकान आपके साथ किस तरह से एक टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिस तरह टीम बिल्डिंग होगी तो फिर आप किसी की जी। आज भी हमारी ये मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट्स की सेरेमनी थी जिसमें सरफहरिस्त हमारी जो है उनसे हमने इन ब्लैक एंड वाइट हमने उनसे जो है ये अंडरटेकिंग ली है। उसमें तमाम शराइत में सबसे पहले ये चीज़ें शामिल हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होना ज़रूरी है, कैमराज होना ज़रूरी है, किसी भी किस्म की शर्त लगा के वहाँ पे खेलना मना है। और मज़ीद उसको सिक्योर करने के लिए जो टाइम का चैलेंज था उसके लिए जैसे फैज साहब ने भी उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो पुलिस के इशूज़ तो उसको हल करने के लिए हमने पुलिस के साथ ताउन करने के लिए भी हमने बहुत ऐसा लाहे अमल बनाया हुआ है कि वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनकी एक पूरी आइडेंटिफिकेशन होगी, उनके मेंबरशिप कार्ड्स बनेंगे, जो हमारे मेंबर्स जो एकेडमीज में आएंगे उनका कार्ड बना होगा, उनकी एक पहचान होगी। बिल्कुल जी, जो सरमद साहब कह रहे हैं हम भी उम्मीद करते हैं कि ये तंजीम जो यहाँ पर बनी है, और हम भी दुआ गो हैं कि जो एक स्नूकर का इमेज था उसको अब बेहतर करने में ये तंजीम जो है वो कामयाब होगी
اور یہ تنظیم جو بنی ہے اس میں کا سب سے بڑا مقصد جو مجھے یہاں پر جہاں تک سمجھ آیا ہے کہ جو مالکان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پولیس گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب اس پولیس گردی کے انگیز جو ہے اگر کسی ایک کلب مالک کو تنگ کیا جاتا ہے تو یہ تمام مالکان، یہ تمام تنظیم اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور یہی اس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ سنوکر کو اگر جو دنیا کا سب سے زیادہ کھیلے جانا والا کھیل ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلے جانا والا کھیل ہے، اس کھیل کو اگر آپ نے اس کی بقا یا اس کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کو ورلڈ چیمپئنز دینے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کلبز کو تحفظ، اکیڈمیز کو تحفظ، اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ اکیڈمی اپنے جو یہ ایسوسیشن ہے یہ اپنے ان تمام مقاصد کو پورا کر سکے گی۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، پھر کبھی اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ کھیلوں کے ہی کسی رنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔